Assalamu alaikum student. After completed chapter number 2 components of food, we are moving into chapter number 4 different kinds of material. Chapter number 3 are not included. So we start chapter number 4. Let's have read together first introduction. Look at the objects around you. They are all made of different kinds of materials. The desk may be made of wood or metal. The ruler may be made of metal. Write down the names of the objects you can see, then put them in groups according to the material they are made of. For example, the dustbin may be made of plastic and so may be a water bottle you can see. Put all the things made of plastic in one group. Since materials are present in such large numbers around us, it is very difficult to count and study them. It is important to know the properties of materials present around us as it helps us to understand them properly. It is much easier to know and learn more about them when they are grouped or classified into categories. That is why scientists classify materials. Different kind of material means, first of all, I will explain what is the materials. हर वो चीज़ जो वेट रखती हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करती हो, मीन्स कि जगह घेरती हो, वो मैटर कहलाता है. और वो मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ मोबाइल, तो मोबाइल का एक वेट भी है और अगर आप उसको किसी जगह पे रखेंगे तो वो स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा या स्पेस को कवर करेगा या वो जगह भी घेरेगा. इसी तरह से टेबल हो गई, ग्लास हो गया, ग्लास के अंदर जो पानी होता है वो भी अपनी जगह घेरता है. तो दीज आर कॉल्ड द मैटर. तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है और वो कितनी जगह ऑक्युपाई करती है. उसमें जो है आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो मुख्तलिफ मटेरियल से बनी हुई हैं. अगर आप अपने डाइनिंग टेबल देखते हैं अपने घर में तो वो वुड से बनी हुई है, कुछ मेटल से बनी हुई होती हैं. और इसी तरह से आप उन तमाम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ डस्टबिन जो होते हैं वो प्लास्टिक से भी बने हुए होते हैं, कुछ जो होते हैं वुड के भी होते हैं, एज वेल एज द वाटर बॉटल होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स भी होती हैं. पुट ऑल द थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन वन ग्रुप. इसी तरह से हमने उसको क्लासिफिकेशन की है. क्लासिफिकेशन मतलब कि हमने उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ शीशे से बनी हुई है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो मिरर हो, विंडो मिरर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो अलग एक ग्लास की ग्रुपिंग हो गई. इसी तरह जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं उनको अलग कैटेगराइज किया जाता है. मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, कलर्स, शेप्स और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग एट्सेट्रा. So there are many ways of classifying material. For example, some are made of from plastic, fabrics, metals, woods. Some are living beings and some are non-living beings. Living beings commonly present around us include human beings, various types of plants, animals, insects, birds, etc. On the other hand, tables, chairs, pens, pencils, cars, toys, etc. are non-living things. Living beings can further be classified into plants and animals. Plants are classified as algae, fungi, aquatic, herbs, shrubs, etc. Similarly, animals are further classified into aquatic, terrestrial, and aerial depending upon the place they live in. Non-living things are also classified on the basis of their source and materials of which they are made of. On the basis of their source, and the things are categorized as natural or man-made. Thus, it can be concluded that classification helps us to understand and know more about the material present around us. Classification जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस, कलर्स और शेप के होते हैं. उसमें लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं. और उसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक से बनी होती हैं, फैब्रिक से होती हैं, मेटल, वुड. सम आर लिविंग बीइंग एंड सम आर नॉन लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स कॉमनली प्रेजेंट अराउंड अस इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोग इंसान
वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी आप, इंसेक्ट्स, बर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिविंग बींग्स. ऑन द अदर हैंड टेबल्स, चेयर, पेन आर, cars, toys आर नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग बींग्स को आप फर्दर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में. प्लांट्स में आप उसकी क्लासीफाई करते हैं फंजाई, एक्वेटिक, हर्ब्स, शर्ब्स. कुछ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन पे उगते हैं, कुछ जो हैं वो डेजर्ट में उगते हैं, कुछ जो है वो पानी में भी होते हैं, उसको आप क्लासीफाई करते हैं. इसी तरह एनिमल्स आर फर्दर क्लासीफाइड टू एक्वेटिक, पानी में जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एरिया डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर दे लिव इन. तो उनको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, सोर्स एंड मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड ऑफ. नॉन लिविंग थिंग को आप इस तरह से क्लासीफाई करते हैं क्या उनका यूज़ क्या है, उनकी सोर्सेज क्या हैं, मतलब उनको कैसे हासिल किया जाता है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किन चीज़ों से बनते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स द थिंग्स आर कैटेगराइज एज नेचुरल और मैन मेड. कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं और कुछ जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं. जैसे अगर एक दरख्त है तो वो नेचुरल है, उसके बाद उस दरख्त को काट के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल अब वुड से जो है वो टेबल बनता है, फर्नीचर बनता है, उससे उसकी लकड़ी से पेपर भी बनता है, रबर निकलता है उसमें से. तो वो ये चीज़ें जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं कि उनको यूटिलाइज